So yo guys, welcome back to Topjix Trailer, and today I'm giving you the trades breakdown of 10th July, and here is it. So yeah, let's go through it. So bah, whatever. So this is a H1 TGL2. So I plan my trades in this way. After tap this zone, I expect to market after a confirmation candle give some move till here and then take my SL or something. But market give a confirmation candle without that any confluence, market take my SL. So with this trade my account is blown in funded, and then I plan another trade from this area. What was the area? Yeah, from the third wave. Yeah, third wave. After this candle I plan a trade SL below this low. After that trail my SL to this low, and market this low 15 pips, and market give me risk free. After that I after sweep this zone and give this candle, I take a revenge entry which shouldn't be taken by me, but still I take that also give me risk free. Then after market tap the TGL2 again, and after flipping this 5 p.m. candle I enter. Again this give me risk free in my funded account in real both. And then after I plan trades like this. I take a entry at this time. I saw it in futures chart, so I take entry and market take my SL. Then market close in, just tap the zone and close the candle. Then after market give some move. Then after this confirmation candle I again enter, and then market give me this move, but I cannot do risk free as my entry take place somewhere around here. So my initial SL like 60 pip, and this only give me 50 pip. So yeah, and then what did I did? My mistake is I trail my SL till here or something. Okay, this candle low. After this candle I again increase my lot, SL below this low. After this candle my again SL got hit, and I that time I understand I do revenge and mistakenly place my SL without any structure and all. So that's wrong, and that is why I lost $32 in the faltu zuka zone. And then after this engulfing confirmation I again re-enter with small loss with 60 pip of SL. Then next free my trade here, and then in funded and real both. And then after fourth wave I again enter directly risk free, that also somewhere around here. And then market give me this move. After this all my these trades are in my break even risk free zone, and market stop me out because of Trump news, and I didn't do revenge and all. There is a trade which I can do from this order block I saw, but this is not at my plan at all, so I didn't take any. And yeah, with that note, this is it for today. And I know it is a trade like 1 minute, 1 minute change of character. So this should be the zone for the what did I say, for the re-entry and all. And wow, market shoot up from that level. Fucking insane, na? This could be whatever. This is just a lucky charm or a trade or something else, which I can't take because of the news. Market structure is just simply got like fucking hell. So for tomorrow, not tomorrow, like for the next day, my simple plan is like after market do 15-minute change of character, I plan a trade from the QML and the RBS. Simple as fuck. Not anything between that. Also I can plan a trade like this. This is a structured in 5 minutes. So 1 2 3 4 5. So yeah, this is a trade I can take tomorrow. Why not tomorrow, like yeah, you know what
trying to say. These RBS played out. Yeah, this is a zone which our third wave also act like a resistance for one time, two time, three time, fourth time, five time, five time resistance. So six time. So six time resistance can good support. Support also one time, two time. Like this is a pretty good zone. So I can take risks here, and after a good confirmation like 15 minutes change of character, I am going to do SN session for Monday morning. And yeah, that going to be a good session, I hope. And in my funded and real account, I am going to take risks like a 40 pips and all. That's all. And against targeting this has 200 pips, and this is a easy peasy target, I know, and going to achieve it very clearly. And the next trade is going to like this only, 15-minute QML. That's it for today. 15-minute QML also a good zone, because the same zone layover with fourth wave. So I am plan my trades like this. I trade from here till last selling zone like this, 100 pips, and then I trade from here till here. Okay, so that's my plan for the Monday. Yeah, in that note, I am ending the session. Also, I want to tell you something, that I am lagging in many things. Like I lagging in controlling my risks. Like when market tap the zone, I am a fumble. Like what is my pattern? Like मैं बार बार क्या चीज़ रिपीट करते जा रहा हूँ, गलती करते जा रहा हूँ. मार्केट जब जोन में टैप नहीं है ना, तो तब मैं कोई ऐसे वाला ट्रेड नहीं कर रहा हूँ. कि मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कहीं भी ट्रेड उठा ले रहा हूँ, हाँ यहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा, ये सब मैं छोड़ चुका हूँ. मैं अभी फंबल कहाँ कर रहा हूँ, एक एंट्री में और एसएल प्लेसमेंट में. मैं लाइक एक कैंडल देखी, कैंडल के बिलो एसएल लगा देता हूँ. यार देखो, एसएल सबसे बढ़िया काम करता है, या तो जोन के नीचे लगाओ, या तो एक बढ़िया इंगल्फिंग विथ लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का, या तो बढ़िया लिक्विडिटी स्वीप विथ हैमर कैंडल को ऐड करो. ये दोनों अगर हुआ तो आप ये कर सकते हो कि एसएल जोन के नीचे नहीं, कैंडल के नीचे लगाओ. लाइक आई जस्ट शो यू. जैसे यहाँ पे यहाँ पे जब मैंने लिया था, तो मैंने ए वाले पे लिया, और यहाँ पे मेरा एसएल किया. ये तो स्वीप नहीं किया, तो ये लिया था ना, 2 बज लिया था क्या? नहीं नहीं, ये नहीं लिया था, ए वाला लिया था. या तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इंगल्फिंग बनाया, मैं घुस गया. लेकिन जोन कहाँ का था, 1 आवर का ना. वेट, एक बार सिर्फ जोन मार्क करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो यहाँ पे जब यहाँ पे ले ही रहा हो, तो पहले तो या तो डायरेक्ट ले लो, ठीक है. तो 50 पिप का जोन है, तो डायरेक्ट ले लो. तो डायरेक्ट में आपका ऐसे उठता नहीं है, क्योंकि आरबीएस नीचे पेंडिंग था, तो मैंने डायरेक्ट लेने का ये नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है जाएगा. फिर भी मैंने लिया, आउट ऑफ सेशन जाके लिया. तो ये दो चीज़ जो मैंने गलती किया, एक आउट ऑफ सेशन ट्रेड लिया, सेकंड मैंने गलती किया ये वाला, कि मैंने मुझे पता है आरबीएस अनटैप्ड है, तो वो तो टैप्ड होने वाला ही है, फिर भी मैंने आउट ऑफ सेशन जाके ट्रेड लिया. एक मेरा गलती था. और एक गलती जो मैं बोलना भूल गया, जो ये वाला ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ से जो ट्रेड लिया था, वो तो भाई यहाँ पे 5 मिनट का क्यूएमएल था, टीजीएल 2 था.
तो यहाँ पे तो उस हिसाब से मुझे बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, लगे रहो। मैं नहीं किया बुक और गया मेरा एसएल, क्या बताए। हाँ, अगर एंट्री ए वाला कैंडल देख के करता तो ए वाला कैंडल और थोड़ा बढ़िया से प्रिंट होता करीब यहाँ कहीं, तो मैं साहस दिखा सकता था कि हाँ ले लूँ। लेकिन किया नहीं, मैं थर्ड वेव के ऐसे एंटर हुआ तो लग गया लौड़े। क्या ही बताए, नहीं था, आउट ऑफ सेशन था वो भी देखो। तो आउट ऑफ सेशन में एक बार तो टीपी दे दिया, तो टीपी लेके भागो ना भाई, क्यों बैठे हो। बुक तो पार्सल वगैरह तो डालो, और सही जगह पे रिक्स नहीं कर रहा हुआ, जहाँ रिक्स कर रहा हूँ वहाँ पे से लौट जा रहा है। मतलब अरे मैं पहले ही पूरा रिक्स डाल दे रहा हूँ, बार बार एक चीज़ रिपीट हो रहा है मेरे से, मैं नोट नहीं कर रहा कि मेरा जो पहले वाले पे लॉट्स घुसा रहा हो वो बड़े घुसा रहा हो, और जब वो कंफर्मेशन वगैरह मिल जा रहा है ना, तो तब मैं छोटे लॉट्स का वेट कर रहा हूँ। और बड़े लॉट्स के जब वो मैं डायरेक्ट एंटर मार दे रहा हूँ और कंफर्मेशन थोड़ा बहुत लेट आ रहा है, लेकिन ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है कि पहले वाले कंफर्मेशन पे हाफ लॉट्स ही डालो एसएल बड़ा लेके, और नीचे वाले पे लॉट्स बढ़ाओ, ऐसे करके ही करो। क्योंकि हर वक्त ये पैटर्न रिपीट हो ही रहा है कि पहले मार्केट आ रहा है, एक कंफर्मेशन दे रहा है, उसका एसएल ले रहा है, उसके बाद नीचे जाके और बढ़िया से कंफर्मेशन वगैरह दे के मार्केट सूट अप हो रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ कि रिवेंज करके सिर्फ पैसा जा रहा है, और क्या कहते हैं, रिवेंज करके सिर्फ पैसा जा रहा है। मतलब जब जब मैं एक बाय और सेल का बटन दबा रहा हूँ, तब तब मेरा पैसे जाने का चांस और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते मैं, मतलब मुझे क्या कंट्रोल करना है, मतलब यहाँ पे कितना एंट्री बनना चाहिए था। एक हैमर पे एज एज इट टीजल टू है, सो एक एंट्री ए हैमर पे जैसे होना चाहिए था किया। तो हैमर के बाद करने के बाद ये लो के नीचे एसएल, और एसएल उड़ गया, ठीक है, गया गया। नेक्स्ट एंट्री कैसे होना चाहिए था, ए इंगल्फिंग के नीचे और एसएल बिलो दिस जोन के नीचे, लाइक 50 पिप्स। दिस वुड बी द आइडियल, और द मोस्ट आइडियल सिचुएशन हेयर शुड बी लाइक दैट। लाइक मार्केट ऐसे स्वीप किया, लाइक लास्ट वाला कैंडल का लो स्वीप नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग पे एंट्री हुआ, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो यहाँ पे जो लोग एंटर हुए उन लोगों का ऐसे उड़ने दो, उसके बाद यहाँ पे घुस जाओ डायरेक्टली कि ये वाला कैंडल पे। ये वाला तो स्वीप कर लिया ना, ये वाला कैंडल के लो ने, तो ये वाला अगर ना भी करे तो भी ठीक है। तो हो गया, बूम बाम बुबान भाम। कैसे एंटर हो रहा है देखो, ये लो, ऐसे 160 पे इजी। सो ये वाला एक एंट्री। अगेन यहाँ पे जो मिस्टेक किया मैंने, ये वाला जोन लूसिड में टैप, ये वाला ट्रेडिंग व्यू पे टैप, तो लूसिड के अकॉर्डिंग कैंडल लो लिक्विडिटी स्वीप पे मैंने डाला एंट्री, ऐसे लोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद ये लूसिड में बना इंगल्फिंग, उस हिसाब से मैं लिया। तो रियल में जो गलती किया, एसएल प्लेसमेंट, एसएल जितनी बार मैं हिला रहा हूँ मेरा उतना बार उठ जा रहा है, क्यों भाई। एज पर स्ट्रक्चर रखो ना, एसएल तो इसके नीचे बोला गया है। अगर नहीं हो रहा है, औकात में नहीं आ रहा है उतना एसएल, तो लॉट्स कम कर दो, सिंपल भाई। क्यों भाई, क्यों आपको होल्ड करना है, क्या ग्रीड है। सिंपल, अगर इसके नीचे होल्ड नहीं हो रहा है, या तो ट्रेड काटो या तो लॉट्स कम करो, हो गया काम ख़त्म। एक्सेप्ट करो कि हाँ औकात के बाहर का लॉस है, मैं नहीं ले पाऊँगा अगर गया, तो उससे बेहतर है कि लॉट्स ही कम कर दूँ, हो गया काम ख़त्म। ये क्या मतलब, इसका ये थोड़ा बहुत कैंडल, इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसका कैंडल देख के मैंने मारा एंटर, हट मारा, फालतू का ट्रेड लेके, मतलब माँ की छूत। आराम से वाला ट्रेड लेता, यहाँ पे भी $30 अराउंड मैंने लॉस कर दिया। ये आराम से ठीक है, ये वाला ट्रेड ऐसे दिया 40 45 का, यहाँ पे मारा रिक्स फ्री। ओह अच्छा, मैं यहाँ पे मारा था डायरेक्ट वाला मतलब कैंडल जब ऊपर शूट अप कर रहा है तब मारा था एंट्री, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे हमारा 50 और यहाँ पे आ रहा $60। अच्छा जी, समझ आया क्या दिक्कत था। फिर भी ये वाला जायज़ नहीं है, उससे बेहतर, मतलब जितनी बार तुम अपने आर्डर के अंदर खेलोगे एसएल के साथ, उतने बार आपका ज़्यादा लौड़े लगने का चांसेस, लाइक
ये वाला जो ट्रेड लिया था ऐसे करके था, मतलब यहाँ पे एंट्री हुआ ऊपर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हुआ हुआ 60 पिप कैसे ले ला आराम से। दो दो लॉट से यहाँ पे निकल दिया गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये करो। और औकात के बाहर आ रहा है, इतना ऊपर आ गया 55 पिप, 0.01 निकाल दो, ये कुछ निकाल दो। रिक्स फ्री का जो रिक्स फ्री होगा, हाफ का हाफ लॉट निकाल दो यहाँ तक कर, मतलब हो तो मोटा मोटी तो हो ही रहा है ना, तो ठीक है। तो उसके ऐसे करके आराम से होल्ड करो, ऐसे जाएगा तो थोड़ा जाएगा, फिर जब रिक्स फ्री आएगा तो प्रॉपर थोड़ा बहुत ऊपर रिक्स फ्री कर लो, एंड देन आराम से होल्ड करो। लेकिन ये वाला चला जाता है, ट्रम्प की वजह से नहीं गया, कोई बात नहीं है, किसी का हाथ पे सब है नहीं है, एक दिन का बात है, एक सेटअप नहीं चला, कोई दिक्कत का बात नहीं है, एक सेटअप खराब हुआ, अभी पूरा एयर बाकी है बूम करने का। अभी भी तो री एंट्री का ये दिखा रहा हो कहाँ कहाँ हो सकता है, कि 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, आराम से घुस जाओ एक, और दो है तेरा क्या कहते हैं QML से फोर्थ वे यहाँ पे घुस जाओ, दो दो बढ़िया बढ़िया ट्रेड है ये, दो ट्रेड में प्लान करके चल रहा हूँ, जब भी जोन पे आएगा कंफर्मेशन देगा मैं ठोक दूंगा बस, ऐसे लूँगा बड़ा, कोई मतलब बड़ा मतलब इतना भी बड़ा नहीं, एक लॉजिकल लाइक दिस 40 पिप का, दो 40 पिप का ऐसे लूँगा, $20 यहाँ लो रिक्स, $20 यहाँ रिक्स, यहाँ यहाँ से चलेगा तो मैं कमाऊँगा, समझ ले तेरा, मैं बोल रहा हूँ $100 करीब यहाँ कमाऊँगा, और 60-50 डॉलर यहाँ कमाऊँगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसे 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 दोनों चल गया ना तो मेरा, मतलब ऐसे, और तेरा क्या कहते हैं, ऐसे अगर दोनों चल गया ना, तो मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक जब भी ये दो लेवल प्ले होगा मैं 60-70 डॉलर कमा लूँगा, 60-70 बोला, आराम से 150 से $200 कमा के जाऊँगा ये दो सेटअप पे। ये मैं अभी कह के जा रहा हूँ, चलो टाटा।